Good morning, beta. Now we will discuss section 125 of CRPC, and this section is related to the maintenance of the wife, children and parents. And this section means that any person includes husband, son and father. Okay? He has a sufficient means and neglect to the wife, legitimate or illegitimate sons, father, mother, and if they cannot maintain themselves, then these persons are entitled the maintenance from those persons, which is mentioned in any persons. Okay? So on the basis of this, beta, we will discuss one of the most important judgment and the latest judgment, that is known as Rajesh versus Neha. Okay? Rajesh versus Neha, and decided on 4th November 2020. Okay, beta? Why this judgment is a landmark judgment on this? Because in this judgment, a detailed discussion has been made, and the Supreme Court has issued the guidelines to the different courts of India that before filing the applications and specific affidavits, ठीक है, इन जजमेंट्स का पार्ट है एफिडेविट्स भी, आपने ये वाले एफिडेविट्स फाइल करने एट द बिफोर ऑफ ए फाइलिंग द एप्लीकेशंस एंड इवन इन द रिप्लाई. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस जजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. और इस जजमेंट्स के अंदर ही व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज डिस्कस, वी विल डिस्कस दैट. इस जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट व्हाइल डिस्कसिंग द ऑब्जेक्ट of this section 125 of CRPC, it is to prevent a persons from vagrancy and destitute. ठीक है, वो जो persons हैं, चाहे wife है चाहे parents हैं, उनको कहीं ये ना हो भी उनके पास कोई मनी ना हो. ठीक है, वो भीख मांगे. ठीक है, उनकी पोजीशन ऐसी आए, सोसाइटी उनको मिसयूज करे. ठीक है, सो द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस सेक्शन इज दिस वन. ठीक है बेटा. और फर्दर व्हाइल कंसीडरिंग इन दिस जजमेंट जो मेंटेनेंस है, बिकॉज 2001 के अंदर इंटर मेंटेनेंस भी इंक्लूड किया गया दिस सेक्शंस के अंदर, भी जो मेंटेनेंस है वो कौन से पॉइंट्स होंगे टू डिटरमिन दैट मेंटेनेंस. ठीक है, तो वो भी वी हैव डिस्कस इन दिस जजमेंट. ठीक है बेटा. सो राइट ऑन द फर्स्ट we are discussing one of the most important, that is Rajesh versus Neha judgment on the basis of section 125. ठीक है, we will discuss in detail beta. You in the examination you must mention this judgment when you are discussing section 125. ठीक है, I have already told to you that the guidelines has been issued in this judgment. ठीक है, and even this is the only judgments how the Supreme Court has worked. They have specifically drafted the affidavits. ठीक है, and mentioned in the last part of a judgment you have been given this affidavits when you are filing the application and reply the applications. ठीक है, so in this judgment first we will discuss what the Supreme Court did, that is a criteria for determining quantum of maintenance. ठीक है, क्या क्राइटेरिया होता है जहां पे मेंटेनेंस को डिटरमिन किया जाता है, कौन कौन से ग्राउंड्स है, किस बेस पे वो होता है. ठीक है, एज पर दिस जजमेंट द ऑब्जेक्ट of granting interim permanent alimony is to ensure that
dependent spouse is not reduced to the destitution or a vagrancy account on the failure of marriage. ठीक है, यही ऑब्जेक्ट है इसका सेक्शन 125 को इंट्रोड्यूस करने का. दिस वाज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, और ऐसा होना चाहिए जब हम डिटरमिन करते हैं मेंटेनेंस, हमने ये भी देखना है भी उसको हमने डेस्टिट्यूट और वैग्रेंसी की पोजीशंस पे नहीं लाना. ठीक है, और हमने हस्बैंड को एक पुनिशमेंट भी नहीं देनी. आप इतना भी फिक्स मत कर दो एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इट विल लुक्स लाइक दैट यू आर गिविंग ए पुनिशमेंट टू द हस्बैंड. ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस जजमेंट. जब क्वांटम हो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यू स्टार्ट विद दिस जजमेंट that is Rajesh versus Neha, where the Supreme Court mentioned the criteria for determining the quantum of maintenance, that the object of granting interim permanent alimony is to ensure that dependent spouse is not reduced to the destitution of a vagrancy and account of the failure of the marriage, and not as a punishment the other spouse. There is a no state, चाहे सुप्रीम कोर्ट फर्दर स्टेटेड दैट देयर इज नॉट कोई परमानेंट नहीं है, इट्स नॉट ए कंप्यूटर भी आपने एप्लीकेशन डाली उसके अंदर फिक्स होके आ गया. ठीक है, तो आप उसके अंदर व्हाट विल यू कंसीडर. ठीक है, सो रिगार्डिंग दिस सुप्रीम कोर्ट मेंशन दैट फैक्टर व्हिच वुड बी वेट विद द कोर्ट इंटरलाई दैट फर्स्ट स्टेटस ऑफ द पार्टीज. ठीक है, इसको आप लिखो स्टेटस एज पर दिस जजमेंट स्टेटमेंट स्टेटस ऑफ द पार्टीज. सेकंड, रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रंस, वेदर द एप्लीकेंट इज एजुकेटेड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, whether the applicant has any source of income, whether the applicant has source of income, next, whether the income is sufficient to enable her to maintain the same standard of living, whether the income sufficient to enable her to maintain the same standard of living. कौन सा standard of living which was at the matrimonial home before that. उसके मायके का स्टैंडर्ड नहीं देखना हमने, जब उसके मैरिज के बाद वो वहां पे आई उसका क्या स्टैंडर्ड था, वी विल कंसीडर दैट पार्ट. ठीक है, सो इन दिस जजमेंट इट्स फर्दर द एप्लीकेशन वाज implied prior to her marriage, then the other financial capacity of the husband. Next point, and his actual income. हस्बैंड का भी देखना है हमने एज पर दिस जजमेंट. हस्बैंड के कितने एक्सपेंसेस हैं, व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ हस्बैंड. और नेक्स्ट, हस्बैंड कितने मेंबर्स को मेंटेन कर रहा है. ठीक है, अगर सपोज वाइफ ने मेंटेनेंस मांगा है, हस्बैंड जो है अपने पेरेंट्स को, ठीक है, तो वो भी मेंटेन कर रहा है, तो वी हैव टू बी कंसीडर ऑल द सर्कमस्टांसेस टुगेदर. सेक्शन 23 सुप्रीम कोर्ट आल्सो डिस्कस सेक्शन 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, which also mention the criteria for determining the maintenance
where in sections 23 it is mentioned regarding that these factors will consider by the court. First one is position and the status of the parties as per section 23. Reasonable wants of the claimant. If the petitioner is living separately, the justification of the same, why he is living separately. ठीक है, वो वही ग्राउंड्स है, उसने सेकंड मैरिज कर ली है, ठीक है, और उसने जो है उसके केस ऑफ ए क्रूअल्टी, वो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी and income from the petitioner's own from other sources. ठीक है, so बेटा this was the discuss regarding grounds determining the maintenance. So similarly beta sections 22 Supreme Court also 22 of Domestic Violence Act, that it should be an adequate, fair, reasonable. So this section 22 subsections 2, it should be fair, reasonable and consistent with the standard of living. So now beta, Supreme Court in this case Rajesh versus Neha relied upon this important judgment, that is Bharat Hegde versus Srimati Saroj Hegde. Bharat Hegde versus Srimati Saroj Hegde, and laid down the following factors considering the determining the maintenance. ठीक है, ये पॉइंट्स इस जजमेंट्स के बेस पे, ठीक है, इस जजमेंट्स में जो पॉइंट्स दिए हैं वो लिख लो आप. नंबर फर्स्ट, चाहे ये रिपीट होंगे, बट यू आर मेंशनिंग द वन जजमेंट ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाइड in this Rajesh versus Neha case. It is the landmark case, 2020 case. ठीक है, first status of the parties, number 1. Reasonable wants of the petitioner जो आएगा जिसने फाइल किया क्लेमेंट, एंड द इंडिपेंडेंट इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द petitioner, जिसने क्लेम किया है, द नंबर ऑफ द पर्सन्स, the number of the person non-applicant has to maintain. बेटा इसका मतलब क्या हो गया? The number of the persons non-applicant has to maintain. क्या हो गया प्रज्वल? सर वो कितने और बंदों को मेंटेन कर? Yes, ठीक है, एप्लीकेंट के अलावा और कितनों को, जैसे पेरेंट्स को वो मेंटेन कर रहा है, ठीक है, और समटाइम उसके पास उसके अपने बच्चे भी होते हैं, ठीक है, जो पिटीशनर है, एप्लीकेंट है, वो अकेली चली जाती है, बच्चों को भी छोड़ जाती है, ठीक है, तो वो कोर्ट सारी कंसीडर करेगी. नेक्स्ट, द अमाउंट शुड एंड एड द एप्लीकेंट टू लिव इन सिमिलर लाइफस्टाइल as she enjoyed
in the matrimonial home. ठीक है, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, वो कहते भी जो उसने एंजॉय किया था अपने पेरेंट्स के पास वो वाला. ठीक है, so in this case the next point is non-applicant's liability if any. अब मुझे तुम नॉन एप्लीकेंट्स की कोई लाइबिलिटी बताओ बेटा. मेडिकल्स भी हो गया, गुड. और अभिषेक तुम बताओ बेटा. अब देखो, हाँ प्रॉपर्टी तो कुछ उनका, चलो सपोज उन्होंने कोई लोन वापस करना है, ठीक है, और नॉन एप्लीकेंट सपोज उस जो वाइफ है वो चली गई. ठीक है, वाइफ हैज गॉन अवे बाय लेफ्टिंग द वन ऑफ द मेजर डॉटर जिसकी अभी मैरिज करनी है. ठीक है, तो जो उसके पास उसकी बेटी को छोड़ के चली गई जिसकी मैरिज करनी है, शी इज ए नॉन एप्लीकेंट, तो उसकी लाइबिलिटी विल बी कंसीडर. ठीक है, सो वो भी कोर्ट में कंसीडर करेगी, इसने इसकी मैरिज करनी है, इसको अगर मेंटेनेंस इतना हमने, क्योंकि जो मेंटेनेंस है जैसे रिगार्डिंग इन दिस एप्लीकेशंस, दिस प्रेजेंट केस के अंदर जो मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था बाय द फैमिली कोर्ट, दैट इज 15,000 टू द वाइफ एंड 5,000 टू हर चाइल्ड. ठीक है, दोनों को वो लेके तो उसके ये मेंटेनेंस, तो मैटर वेंट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट. बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस दिस केस, दिस अपील, जो देन द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्ट्स. देन बेटा नेक्स्ट, तो इसमें अपने मॉम डैड को भी मेंटेन करना भी अगर, कैसे, जैसे अभी आपने बोला लायबिलिटी ऑफ नॉन, हाँ किसको, उसके अंदर उसके मॉम डैड को भी गिना जाएगा. हाँ यस. ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द नॉन एप्लीकेंट्स लाइबिलिटीज. ठीक है, तो ये उसने अपनी लड़की की मैरिज करनी है, वो एप्लीकेंट नहीं है, उसकी लाइबिलिटीज. अब पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ने जैसे तुमने मेडिकल बताया, उनकी मेडिकल्स की हमने वो करनी है, वो भी एक लाइबिलिटी, उसको पता भी हर मंथ उनकी इतना उस पर खर्च आता है. ठीक है, अगर सपोज वो डॉक्यूमेंट्स लगाता है भी सर माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक, आई हैव टू बी, जो मैंने उनका मेजर ऑपरेशंस कराना है हार्ट का. ठीक है, दिस इज द रिपोर्ट फ्रॉम द पीजीआई, मेरा वहां पे भी खर्चा होएगा. ठीक है, तो कोर्ट वो भी कंसीडर करेगी. सो these facts you have to be considered. ठीक है, और provisions for food, clothing, shelter, education, medical attendance and treatment of the applicant. ठीक है, so ये चीजें सभी we will have to be considered, and then while determining the quantum of a maintenance. फिर then payment capacity of the non applicant. Some guesswork is not ruled out while eliminating the income of the non-applicant when the all source or correct source are not disclosed. Okay? The non-applicant is defrayed the cost of litigations. ठीक है? So these are the बेटा जो है इसमें हमने consider करना है. और उसको दूसरे सपोज उसको कहीं और एक्ट के अंदर, सपोज उसको हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस मिला हुआ है. ठीक है, उसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कोई मेंटेनेंस मिला है, तो हमने जब उसको 125 में कंसीडर करना है तो हमने उसकी वो अमाउंट भी एडजस्ट करनी है. ठीक है, हमने ये नहीं देखना कि तुम्हें वहां चलता है वो तो तुम्हें वहां देखो, मैं तो यहां डिटरमिन करूंगा, बट आपने उसको क्या अमाउंट उधर मिली है, वी हैव आल्सो कंसीडर दैट. ठीक है, सम एडिशनल फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर्स हैं रिगार्डिंग दिस जो हमने ये इस जजमेंट्स के अंदर डिस्कस किए हैं. दैट इज एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पार्टीज. सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट इट इज डिस्कस्ड रिगार्डिंग द एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पार्टीज. और जो हाउस उसने रेंट पे लिया है, जहां पे रह रहे हैं, उसका क्या है वो. ठीक है, ये था वाइफ का. एंड सिमिलरली इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट डिस्कस रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ए चाइल्ड.
उसका कैसे करना है, दैट इज मेंशन इन, लिखो द मेंटेनेंस ऑफ ए माइनर चिल्ड्रंस, द लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ द चाइल्ड would include expenses for food, clothing, residence, medical expenses, और सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन ऑफ ए चिल्ड्रंस, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस, or any other vocational training courses to complement the basic educations must be factored in while awarding the maintenance to a child. ठीक है? Then बेटा next इसके अंदर The matter was discussed. भी जो मेंटेनेंस होता है सेक्शन 125 के अंदर, अभिषेक वो जो किस डेट से हम फिक्स करते हैं, अब पहले सेक्शन 125 का वो वाला पार्ट पढ़ो जहां पे डिटरमिन द मेंटेनेंस, सेक्शन 125 का 2 पार्ट पढ़ो. Subsection 2. Any such allowances for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding shall be payable from the date of the order. यहाँ पे इसको सर्कल लगा लो, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. ठीक है, एक तो आप डेट ऑफ ऑर्डर से भी मेंटेनेंस दे सकते हो, Or if so ordered from the date of the application for maintenance or interim maintenance and expenses of proceeding as the case may be. ठीक है, और आप डेट ऑफ एप्लीकेशन पे भी दे, इसको भी सर्कल लगा लो. ठीक है, सो लॉ जो लेजिस्लेचर्स है प्रोवाइड अस भी, आप जो इंटरम मेंटेनेंस हो वो आप डेट ऑफ ऑर्डर पे भी ले सकते हो और डेट ऑफ एप्लीकेशंस पे भी ले सकते हो. क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन ये है, अगर सपोज मैंने स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं किया, कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशंस, तो वो किस डेट से माना जाएगा? डेट ऑफ ऑर्डर, वो डेट ऑफ ऑर्डर से माना जाएगा. ठीक है, सो आपने उसमें रीजन देना है भी, आप डेट ऑफ एप्लीकेशंस क्यों कह रहे हो, डेट ऑफ ऑर्डर क्यों कर रहे हो. ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, द सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट, दिस पॉइंट वाज आल्सो डिस्कस. ठीक है, नाउ गो थ्रू दिस. Different high courts has given a different view. Now write on this part of related to this fact. ठीक है, the rationale of granting maintenance from the date of applications find its root in the object of enacting the maintenance legislations. So enable the wife to overcome the financial crunch which occurs on separations from the husband, in order to prevent a dependent from being reduced to the destitutions. It is necessary that maintenance is awarded from the date of which application is filed. ठीक है, जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, अब सपोज
आप देखो भी कितना जस्टिस इनजस्टिस हो सकता है। भी आपने एप्लीकेशन डाल दी, अगर काउंसिल को लगे भी डेट ऑफ ऑर्डर से कोर्ट करती है, उसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इज टू डिले दैट पार्ट। वो हर डेट पे डिले करता रहेगा करते। अब उसने 3 साल निकाल दिए जस्ट फॉर द एप्लीकेशन पर्पस, ठीक है। और वो बेचारी 3 साल लोगों से पैसे मांग कर वो अपने बच्चे का अपना गुजारा कर रही है विद दिस, मुझे मिल जाएगा इकट्ठा, चलो ये मिल जाएगा, ठीक है, मैं उनको रिटर्न कर दूंगी। बट वी आर मेड ए ऑर्डर दैट इट शुड बी फ्रॉम टुडे। तो उसका 3 साल का जो है वो जो है उसको उस पोजीशंस में ला दिया जिस पोजीशंस को रोकने के लिए दिस लॉ हैज बीन मेड, ठीक है, टू प्रिवेंट द वैगरेंसी एंड डेस्टिट्यूट्स। तो आपने उस पोजीशंस पे ला दिया उसको 3 साल उसके अंदर, अगर आपने फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशंस पे नहीं करते। सो दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट हैज अलाइड दिस जजमेंट बादशाह वर्सेस उर्मिला बादशाह। In the Rajesh versus Neha case, the Supreme Court mentioned the judgments of Badshah versus Urmila Badshah, where the purpose of interpretations need to be given the provision of sections 125 CRPC while dealing with the applications of a destitute's wife or children's or parents. Under this provision, the court dealing with marginalized section of the society, the purpose is to achieve social justice, which is the constitutional vision enshrined in the preamble of the Constitution of India. And further, so right of the last line, the right of that claim maintenance must be date back to the date of filing the applications, ठीक है। तो इसमें since the period during which the maintenance proceeding remain pending is not within the control of the applicant, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। तो no come to the one other controversies came in this, so that is also discussed in this judgment। भी अगर डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट आपने इंटरम मेंटेनेंस फिक्स कर दिया, वो पे नहीं करता, ठीक है, क्या उस बेस पे डिफेंस स्टक ऑफ हो सकता है? पर जो डिफेंस स्टक ऑफ क्या होता है, व्हाट इज डिफेंस स्टक ऑफ? जो भी ग्राउंड्स उसने लिए होंगे एज अ डिफेंस को कोर्ट निगलेक्ट कर देगी और अपना डिसाइडर दिखा देगी। उसने अभी रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं की है, ठीक है, तो इंटरम मेंटेनेंस दे नहीं रहा, तो कोर्ट कहती नो योर डिफेंस हैज बीन स्टक ऑफ, आपको कोई एविडेंस कोई नहीं दे सकते, आप कोई आप रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल कर सकते, ठीक है। राजेश वर्सेस नेहा रिगार्डिंग द स्टक ऑफ द डिफेंस, the Supreme Court relied upon our Punjab and Haryana High Court judgment, that is Bani versus Prakash Singh, ठीक है। तुम्हें बेटा कई बार इस 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल ये आ जाता है, कैन द मजिस्ट्रेट स्टक ऑफ द डिफेंस, ठीक है। तो उसमें आपने यू रिलाई दिस जजमेंट राजेश वर्सेस नेहा एंड रिगार्डिंग दिस कौन कौन सी जजमेंट इसने रिलाई की है, ठीक है। तो राइट बेटा फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट judgment of Around High Courts. Similarly, first Kushalya versus Makesh, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट अलाउड ए फैमिली कोर्ट टू strike of the defense
of the respondent in case of a non-payment of maintenance in accordance with the interim order passed. ठीक है, तो इस केस के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट ने लॉ किया है, तो फिर उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन दिस बनी वर्सेस प्रकाश सिंह इन दिस केस was considering the case where the husband failed to comply with the maintenance order despite several notice. ठीक है, उसको कहते भी रहे तुम पे करो, but for a period over 2 years. Then court, taking note of the power to strike of the defense of the respondent, held that law is not that. ये जो wording है, it is sometimes this wording may become directly. ठीक है, बड़ी सख्त वर्डिंग यूज की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने. लॉ इज नॉट द पावरलेस एज नॉट टू ब्रिंग द हस्बैंड टू बुक इफ द हस्बैंड हैज फेल्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस टू द वाइफ. ही अच्छा बेटा आराम से लिख लो बेटा, स्लो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, law is not that powerless as not to bring the husband to book. बेटे ये जजमेंट है, इसको बुक्स में आने में अभी 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल. ठीक है, बट आपको तो जो है एग्जाम देना है, हमने तो बिल्कुल फ्रेश वो देखना है. ठीक है, अगर इफ यू मेंशन दिस जजमेंट, यू मेंशन दिस रीजनिंग, डेफिनेटली आपका स्कोर जो है दूसरों से डिफरेंट होगा. और समटाइम इसी तरीके का क्वेश्चन जो आपने पहले अटेम्प्ट कर लिया, वो एग्जामिनर पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट डाल देता है. ठीक है, हाँ, सो उसमें डिफेंस स्टक ऑफ कर सकता है एज पर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट. हो गया बेटा, क्लियर हो गए? नो बेटा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस गाइडलाइंस, तो अभी मैंने आपको लिखानी है इसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द एडजस्टमेंट ऑफ अनदर्स मेंटेनेंस. ठीक है ना, जो उसको दूसरे उसके मिला हुआ है. ठीक है, सो द सुप्रीम कोर्ट इन दिस राजेश वर्सेस नेहा केस relied upon Sudeep Chaudhary versus Radha Chaudhary. Supreme Court directed adjustment in a case where the wife had filed an application under sections 125 CRPC and under HMA, Hindu Marriage Act. Supreme Court held that maintenance awarded under section 125 CRPC must be adjusted against the amount awarded in matrimonial proceeding under Hindu Marriage Act. अब बेटा we will discuss the in this judgment जो वाइफ की डेफिनेशंस है. ठीक है, क्या वाइफ के अंदर लॉन्ग कोहैबिटेशन जो है उसको वाइफ की डेफिनेशंस में आता है. ठीक है, so we will also discuss this part while considering जो वाइफ की डेफिनेशंस क्या है. ठीक है, so बेटा जो सुप्रीम कोर्ट है relied, this is one of the also important case, that is a Chanmunia versus Barinder Kumar. Chanmunia versus Barinder Kumar. Supreme Court held that where man and woman have cohabited
for a long period of time. In the absence of legal necessities of valid marriage, such women shall be entitled to the maintenance Supreme Court further give a one line. A man should not be allowed to benefit from legal loopholes by enjoying the advantage of de facto marriage. Enjoying the de facto marriage. Without undertaking duties and obligation of such marriage. And Supreme Court further mentioned that even the wife include even those cases where a man and woman have been living together as a husband and wife for a reasonably long period. इसको आपने सर्कल लगा लेना है, reasonably long periods. Strict proof of marriage should not be preconditions for grant. ये जो अपनी मलिमत कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट में का भी, उसमें भी ये चीज मेंशन थी, उसी चीज को भी अगर मैरिज के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं बट दे आर रीजनेबली लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है, तो उसको उन्होंने कंसीडर करना है, ठीक है। हाँ बेटा, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सम टाइम पे उसमें डेफिनेशंस में उन्होंने डिस्कस किया है, वो विल गो थ्रू दिस। नो, रिगार्डिंग द लिविंग रिलेशनशिप द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस 2F of Domestic Violence Act 2005 defines domestic relationship, ठीक है, वहां पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप की डिफाइन की है टू इंक्लूड ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स who live or have at any point of times lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship of nature of marriage,
adoption, adoptions, or are family members living together as a joint family. तो बेटा 125 में आपने थोड़ा सा देखना है कि 125 के अंदर प्रिजम्पशंस वहां है जहां पे थोड़ा रीजनेबल लॉन्ग पीरियड, ठीक है. सो 125 में आप रिफ्यूज कर सकते हो इन द लिविंग रिलेशंस में, बट डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हो सकता है ये डेफिनेशंस कवर करें, ठीक है. और देन बेटा कॉन्सेंटिनिटी में तो फिर जो पेरेंट्स हो गए, हाँ वो आ गए, वो सब आ गए ना, वो सब. This judgment, Rajesh versus Neha, we will discuss what are the guidelines issued by this in this judgment. That is important part, ठीक है. So write down the important guidelines. मैंने आपको 164 की गाइडलाइंस लिखवाई थी बेटा, कौन से केस में लिखवाई थी? याद है? सर कन्फेशंस रिकॉर्ड करने वाले में, हाँ सर वो पेशाब केस नहीं, रविंदर पाल केस में लिखाई थी 12 गाइडलाइंस, ठीक है. हाँ वो ऐसे तुम्हें गाइडलाइंस वाले ना जो केसेस हैं सीआरपीसी के अंदर, गाइडलाइंस वाले केस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. जहां पे इसीलिए वो लैंडमार्क जजमेंट होती है, भी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इशू करती है कि तुमने ये चीज फॉलो करनी है, ठीक है. तो वो गाइडलाइंस वाले केस आपने, जैसे मैंने रविंदर पॉल वाला कराया था तुम्हें, तो उसमें गाइडलाइंस इशू. अच्छा पेशाब में तो सर बड़ा अच्छे से किया था. हाँ वो हाँ उसको फॉलो करके किया था, ठीक है ना. तो वह वो वन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ ए कन्फेशन इज ए बेस्ट कन्फेशन पेशाब केस के अंदर. बाद में सब उल्टा पुल्टा वो तो उन्होंने अच्छे से नहीं किया. हाँ तो उसमें बेटा okay beta, we are discussing one of the important judgment, that is Rajesh versus Neha, decided on 4th November 2020, ठीक है. We have discussed the important points regarding the determinant of maintenance. We have discussed that Hindu Marriage Act, the maintenance has been given also just in this. We have also discussed regarding the definitions part of a wife in this judgment. Now we will discuss what are the important guidelines were issued in this case by the Supreme Court, ठीक है. क्या क्या गाइडलाइंस इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है. सुप्रीम कोर्ट हैज कंसीडर इट्स पावर अंडर आर्टिकल 136 रेड विद आर्टिकल 142 के अंदर उन्होंने जो स्पेशल गाइडलाइंस इशू की है, ठीक है. राइट डाउन द फर्स्ट गाइडलाइंस, that affidavit of disclosure of assets and liabilities. तो इस जजमेंट के अंदर बेटा 3 एफिडेविट्स पीछे लगे हुए हैं, जजमेंट्स का पार्ट है वो. तो वो जो है नेक्स्ट इन इनक्लोजर 1, 2, 3 ऑफ दिस जजमेंट, as may be applicable shall be filed by the parties in all maintenance proceedings, including pending proceeding before the concerned family court, district court, magistrate court, as the case may be throughout the country, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी गाइडलाइंस है ये भी. मैंने 3 एफिडेविट लगा दिए जजमेंट्स के अंदर. आपने कोई भी केस फाइल करना है तो आपने ये एफिडेविट्स जो 3 साथ लगाने हैं, और जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही हैं तो उसमें इसको कंप्लाई करना, ठीक है. सो दिस इज द, इससे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जल्दी सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं करती, ठीक है. भी आप जो पेंडिंग केसेस चल रहे हो उनमें भी आप एफिडेविट लोगे, और जो आप मैंडेटरी बनाओगे आप, ठीक है, उनमें भी द वर्ड शैल बी फाइल्ड, ठीक है. सो as may be applicable shall be filed by the parties. पहली गाइडलाइंस होगी. नंबर 2, the applicant making the claim for maintenance, second important point,
क्योंकि अगर आप सेक्शन 125 करते हो, कोई करवाता है विदाउट दिस जजमेंट, ठीक है, तो वो दैट इज उसका कोई फायदा नहीं। विदाउट दिस जजमेंट अगर आप करा दिया तो दैट इज सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसीलिए जो लॉ है वो आपको जजमेंट पे बेस पे करना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छी क्लैरिटी भी आती है और यू कैन राइट ए गुड आंसर दे, ठीक है, जिसमें आपके मार्क्स आ सकते हैं। सो द बेटा सेकंड गाइडलाइन वाज द एप्लीकेंट मेकिंग द क्लेम ऑफ मेंटेनेंस will be required to file concise applications accompanied with the affidavit of disclosing the assets. This was the second guidelines. Number 3, a respondent must submit the reply along with the affidavits disclosure within a minimum period of 4 weeks. तो 4 weeks के अंदर आपने रिप्लाई करनी है। The court may not grant more than 2 opportunities. कई बार इवन इफ यू बिकम ए मजिस्ट्रेट समटाइम आप बन भी जाते हो, पता भी नहीं लगता गाइडलाइंस का, ठीक है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ये तो सभी जजेस को पता है, हाई कोर्ट जजेस को, ठीक है, तो इंटरव्यू में तुम्हारे क्वेश्चंस भी यहीं से हिट होते हैं, ठीक है, तो आपने फिर 2 अपॉर्चुनिटीज देनी है उसको फॉर सबमिशन ऑफ ए एफिडेविट of disclosure of the assets and liability to the respondent. If the respondent delay of filing the reply within the affidavit and seeks more than 2 adjournment, 2 adjournment के बाद अगर वो मांगता है for the purpose the court may consider exercising the power to strike the defense of the respondent. तो फिर आप उसका डिफेंस जो है खत्म कर सकते हो, ठीक है बेटा। इफ वी कंडक्ट इज फाउंड टू बी विलफुल एंड contemptuous in delaying the proceeding and order to file the affidavit within the prescribed time, the family court may proceed to decide the application maintenance on the basis of the affidavit filed by the applicant and the pleading or record. अगर वो जान के डिले करता है, नहीं करता है, तो आप उसकी डिसाइड भी कर सकते हो एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ उसकी जो प्लीडिंग और एफिडेविट्स के ऊपर। Next direction is the above format may be modified by the concerned court if the exigencies of a case require the same. और ये जुडिशियल डिस्क्रिशंस पे कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। दिस वाज अनदर। नेक्स्ट 5th वन, फिफ्थ के अंदर अगर हमें कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी हम उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। कोर्ट्स को चाहिए भी जो एफिडेविट्स के अंदर कोई चीज नहीं है वो भी हम मांग सकते हैं। If apart from the informations contained in the affidavit of disclosure, any further information is required by the same, it would be left to the judicial discretion. Sorry, if apart from the information contained in the affidavit, any further information is required in the concerned court may pass appropriate order in respect thereof. Next,
if there is any dispute with respect to the declaration made in the affidavit, किसी को लगता है कि किसी ने एफिडेविट्स के अंदर गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो द अग्रीव पार्टी में सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट टू सर्व इंटेरोगेटरीज एंड सीक प्रोडक्शन ऑफ ए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। दिस इज बड़ी इंपॉर्टेंट है। भी आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है, आप लिटिगेशंस कर रहे हो, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है, लड़की को सपोज जॉब मिल जाती है, वो बताती हुई नहीं, हस्बैंड की पे इंक्रीज होती है, वो नहीं बताता, ठीक है। सो दिस गाइडलाइन इज रिगार्डिंग फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। गो थ्रू दिस गाइडलाइंस। जी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए प्रोसीडिंग, if there is a change in the financial status of any party, financial status of the any party, new informations, some new informations comes to the light, the party may submit an amended oblique supplementary affidavits which would be considered by the court at the time of final determination. Next, if any false information, लिख लो H, sorry, then 8. If any false statement or misrepresentations are made in the court, a proceeding under section 340 of CRPC will be initiated. In case parties belongs to EWS, economic weaker sections, or living below the poverty line BPL, or are casual laborers, then requirement of filing the affidavit would be dispensed with. तो बेटा इस केस के अंदर जो EWS या बिलो पॉवर्टी बीपीएल कैटेगरीज के अंदर एफिडेविट्स टू उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस भी उनको एफिडेविट नहीं फाइल करना? पैसे बचाने के लिए नहीं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है बीपीएल का सर्टिफिकेट है वो है, दैट इज सफिशिएंट। उनके पास इसका मतलब इनकम नहीं है, ठीक है, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है तभी वो बना है, ठीक है, तो इसलिए डिस्पेंस विद किया। हाँ, अगर वो कहते हैं ये फोर्स है, फैब्रिकेट है, कोई इस तरीके का है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा, बट उनको डिस्पेंस विद किया गया है रिगार्डिंग फाइलिंग दैट, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसर्न कोर्ट, कोई भी हो, चाहे वो फैमिली कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, ठीक है, जो मेंटेनेंस है वो कौन सी कोर्ट में चलता है? 125 का। Which court deal with this? अभिषेक सर, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास नहीं चल सकता, मजिस्ट्रेट इसी के अंदर दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो जो इंटरम में कोई भी कोर्ट है, चाहे वो फैमिली कोर्ट है या मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वो रीजन्ड ऑर्डर पास करेगी इंटरम मेंटेनेंस का, और विदिन 4 मंथ, 4 to 6 मंथ। ये बेटा इस गाइडलाइंस के बेयर एक्ट के अंदर 6 मंथ का लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने 4 to 6 मंथ का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस,
a professional marriage counselor must be made available in every family court. तो बेटा जो मैरिज काउंसलर्स होते हैं उनका क्या पर्पस क्या होता है? उनका पर्पस ये होता है भी उनको काउंसलिंग करना, कंप्रोमाइज का और का ये होना चाहिए, ठीक। तो मैरिज काउंसलर जो है मस्ट बी मेड अवेलेबल, ठीक है, इन एवरी फैमिली कोर्ट। देन बेटा नेक्स्ट इज parties may lead oral and documentary evidence. 12th guidelines with respect of income, expenditure, standard of living. So these are जो अब guidelines है that is related to the permanent element, ठीक है। तो हमने जब फाइनल डिसाइड कर लिया एप्लीकेशंस, तो उसमें बेटा वो एविडेंस लीड कर सकती हैं फॉर फिक्सिंग द परमानेंट एलिमनी पेबल टू द स्पोर्स। प्रोविजंस फॉर द ग्रांट ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर मैरिज ऑफ चिल्ड्रन मस्ट बी मेड एट द टाइम ऑफ permanent alimony where the custody is with the wife, ठीक है। अगर वो वाइफ की कस्टडी में है चिल्ड्रंस, तो उनकी मैरिज पे जो खर्च आएगा वो भी हम उसमें कंसीडर करेंगे, ठीक है। where there any trust funds investment created by the spouse, grandparents in favor of the children's, they will also be considered. तो बेटे जो गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग डिटरमिनिंग द क्वांटम्स वो मैंने पहले ही आपको लिखा दी तकरीबन, ठीक है। जो इस केस के अंदर डिटरमिन्स हुई भी क्या क्या गाइडलाइंस होनी, ठीक है। सो बेटा दिस वाज योर दिस जजमेंट।